گود میں لے کر محمد کو یوں حلیمہ نے کہا، ارے چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا چاند ہے، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا چاند ہے۔ حضرات محترم، جس محفل رسول میں ہمارا شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی عام محفل نہیں، روزانہ نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ آج نبی کی آمد پہ نبی کا جلسہ ہم نے سجایا، اس لیے سجایا کہ کل بروز حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہمارا اعمال پیش کیا جائے، جب رب کی بارگاہ میں فرشتے آئے اور کہے مولا فلاں تیرے بندے کا اعمال ہے، قسم خدا کی ہم گناہگار ہیں، ہم شیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، اگر نبی کی آمد کے میلاد کے صدقے میں اعمال رب کی بارگاہ میں ہوگا، رب کی بارگاہ میں ہمارے رجسٹر پیش کیے جائیں گے، اس وقت جب اعمال کی کمی ہوگی تو اسی نبی کی آمد کے محفل کے صدقے میں خدا جنت کا مقام نصیب عطا فرمائے گا۔ قریب آئے آمد رسول، کون نبی جو تمام نبیوں کا امام، تمام رسولوں کا امام، تمام نبیوں کا تاجدار، اس نبی کے امتی ہے۔ یاد رکھے جس طریقے سے میرے آقا تمام نبیوں میں لاجواب، تمام نبیوں میں بے مثل بے مثال ہے، اسی طریقے سے اللہ کے پیارے محبوب کا امتی تمام امتیوں میں لاجواب اور بے مثال امتی ہے۔ آج دیکھیں نبی کا مقام تو جارے، کون نبی جس نبی کی آمد ہوئی، آپ نے بہت ساری باتیں ابھی آپ نے سنی میرے آقا کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بیٹی سوال کرتی تھی بابا زارا یہ تو بتا میرا قصور کیا ہے، بابا تو زمین کے حوالے کیوں کر کے چلا جا رہا ہے؟ اللہ یاد کرو دنیا والوں، جس وقت میرے نبی کی آمد ہوئی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ایک بھی بیٹی نہیں عطا کیا بلکہ تمام بیٹے عطا کر دیے ہیں، اور میرا نبی جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بیٹیوں کے قدموں کے نیچے جنتیں لا کے ڈال دیے۔ اس نبی کے امتی آؤ بتاؤ شان میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنی بارگاہ میں بلایا، حضرت ابراہیم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم آ معجزہ لے کر جا، حضرت اسماعیل کو بلایا، کہا آ معجزہ لے کر جا، یحییٰ کو بلایا، کہا آ معجزہ لے کر جا، زکریا کو بلایا، کہا آ معجزہ لے کر جا، شیشا علیہ السلام کو بلایا، رب نے کہا معجزہ لے کر جا، عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بلایا، کہا معجزہ لے کر جا۔ جب نبی کی بات آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی تو رب نے بلایا نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ نبی کتنا عظیم نبی، کتنا عظمت والا نبی، کتنا شان والا نبی۔ آج ہم جلوس محمدی نکالے، ابھی حضرت نے کہا کہ ہم نے 5 10 20 لوگوں سے ہم نے آغاز کیا بچوں کو لے کر، آج اللہ نے اس جلوس محمدی کا عروج 250 300 لوگوں میں رب نے عطا کر دیا ہے۔ کس لیے عطا کر دیا؟ انہوں نے یہ نیت نہیں کیا تھا کہ میں دنیا کے لیے کوئی کام کروں تاکہ دنیا تعریف کرے، انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جلوس نکالا ہے، اور یاد رکھنا جب تک جلوس نکالتا رہے گا اللہ کے محبوب کا صدقہ خدا انہیں عطا کرتا رہے گا۔ اور قریب آئے بتاؤ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے، وہ مدینے والے آقا کی عظمت کیا ہے، ان کا رفت، ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ حضرت آدم کو رب نے کہا وہ آدم تو بتا کون ہے، حضرت ابراہیم کو رب نے بلایا، کہا تو کون ہے، حضرت اسماعیل کو بلایا، کہا تو کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے کہا تو کون ہے۔ جب نبی کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہ کہا کہ محمد بتا تو کون ہے، بلکہ رب نے بتایا کہ میرا محمد کون ہے، اور محمد بتا دے خدا کون ہے۔ وقت زیادہ رہی، حضرت نے ایک شعر پڑھا تھا بریلی کے رضا کا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ وقت زیادہ نہ میں اس کی تشریح کر دوں اور ایک اور نبی کی شان میں واقعات ہو جائے، میں اس شعر کی تشریح کر دوں۔ بریلی کے رضا کوئی عام رضا نہیں، ارے وہ عاشق ہے جس کا احسان ہم پر ایک دن کے لیے نہیں بلکہ صبح قیامت تک احسان بریلی کے رضا کا رہے گا، کیونکہ بریلی کے رضا نے صرف کتاب ہی نہیں دیا، صرف فتویٰ ہی نہیں دیا ہے، بلکہ بریلی کے رضا
हमें नबी का इश्क अता किया है, नबी का शमा अता किया है। आज बरेली का रजा सौदा नगर की सरजमीन पे है। कायनात के हर गोशे में रजा की आवाज की बुलंदी का मकाम नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बरेली के रजा ने जब कलम उठाया है तो तारीफ दुनियादार की नहीं बल्कि आमना के लाल की तारीफ करके बताई। अरे हजरत एक शेर पढ़ा था, या रसूल अल्लाह उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बरेली के रजा का शेर दुनियादार के शायर की तरह नहीं था कि दुनिया का शायर वो है जो अपने माशूक अपने महबूबा को देख कर लिखा करता है, दुनिया के नक्शे को देख कर लिखता है, दुनिया के आसमानों जमीनों को फलक को देख कर लिखता है। मगर वारे मेरा बरेली का रजा है, जब कलम उठाता था तो ना सामने नबी का चेहरा होता था, कलम से नबी का इश्क लिखा जाता था। आपने पढ़ा था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। बरेली के रजा ने जो भी अशआर लिखा ना, ये हदीस नबवी की रोशनी में आपने लिखा। आइए मैं उस करीब ले चलता हूँ, बरेली के रजा ने किस हदीस नबवी की तरफ करीब लेकर चले गए। आइए मैं बताता हूँ, बरेली का रजा है, कलम के बरेली के रजा का कलम है। जब कलम इसके मुस्तफा में झूमता है, झूमने के बाद हदीस नबवी के करीब पहुंचा, पहुंचने के बाद यूं नक्शा लिखा कि हजरत अबू हुरैरा की जाते मुकद्दसा है, एक दो दिन के भूखे प्यासे नहीं है बल्कि हत्ता के कई दिन के भूखे और प्यासे हैं, और प्यास भूख के बाद तड़पने के बाद मदीने की गली में तड़प रहे हैं। मामला तो ये है कि जब 41वां दिन आया दिल में ख्याल आया, चलो मदीने वाले से कुछ मांग कर खा लिया जाए, मदीने वाले से कुछ मांग लिया जाए। जब अबू हुरैरा के दिल में ख्याल आया, मदीने के दरवाजे पे जाते हैं, कुंडी को हिलाते हैं, अंदर से आवाज आती और बाहर से यूं आवाज गई, अबू हुरैरा तेरे दरवाजे पे आया है। दरवाजे की कुंडी खुल जाती है, खुलने के बाद अबू हुरैरा ने सलाम पेश किया। जवाब मिलने के बाद अबू हुरैरा ने कहा, मैं चंद दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल जाए ताकि मैं शिकम शेर हो जाऊं। मदीने के तमाम दरवाजे पे जाते गए मगर दरवाजों पे कुछ ना मिला, यहाँ तक के तमाम दरवाजे से मायूस होकर आप मदीने के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। दिल ने कहा, अबू हुरैरा जब अपना नहीं तो बेगाना कैसे हो सकता है? मगर जब कदम वापिस आपने किया, दिल में ख्याल आया, ओ अबू हुरैरा जहाँ से दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं, आमना के लाल का दरवाजा वहीं से खुलता हुआ नजर आता है, आमना के लाल का दरवाजा खुल जाता है। जब दिल में ख्याल आया तो कदम पीछे नहीं चला है बल्कि कदम चला तो नबी के घर की तरफ चला है। मेरे आका के घर के करीब आते हैं और घर के करीब क्या देखते हैं कि पहले से 72 सहाबी की कतारें मौजूद है। दिल में ख्याल आया, अबू हुरैरा तू नबी के दर पे आया है और नबी के दर पे कुछ खाने को मिल जाए, यहाँ तो पहले से 72 सहाबी की कतारें मौजूद है, अबू हुरैरा तुझे कुछ ना मिल सकेगा। मगर उसी दिल ने कहा, ओ अबू हुरैरा ये नबी का दर है, नबी के दर से कोई खाली नहीं जाता है बल्कि अपने दामनों को भर के आया करता है। जब मेरे आका मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अबू हुरैरा पे पड़ जाती है, अबू हुरैरा को मेरे आका देखते हैं और देखने के बाद मुस्कुराने लगते हैं। मेरे आका ने अबू हुरैरा को करीब बुलाया, अबू हुरैरा मेरे आका के करीब आते हैं। करीब आने के बाद मेरे आका ने सीने से लगाया, उसकी पेशानी को छुपा, कहा, अबू हुरैरा जरा ये तो बता खैरियत क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत तो बेहतर है मगर या रसूल अल्लाह आपका अबू हुरैरा चंद दिनों से भूखा है, मदीने के दरवाजे पे आपका अबू हुरैरा गया मगर खाने को कुछ ना मिला, या रसूल अल्लाह कुछ अता कर दे ताकि आपका अबू हुरैरा शिकम शेर हो जाए। अल्लाह के प्यारे महबूब ने कहा, अबू हुरैरा ठहर जाओ। अबू हुरैरा ठहर जाते हैं, मेरे आका हुजरे के अंदर जाते हैं और जाने के बाद मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला से इरशाद फरमाते हैं, अपने घर में जो दूध का प्याला है उसे लाओ। मेरे आका की बारगाह में मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला दूध का प्याला लेकर आती है, नबी की बारगाह में पेश कर देती है। याद रखना एक छोटे से प्याले में कितना दूध हो सकता है, चंद कतरे दूध के होंगे। नबी की बारगाह में जब मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला लाके पेश करती है, मेरे आका जब दूध का प्याला बाहर लेकर आते हैं, अबू हुरैरा मुस्कुराने लगते हैं, अब नबी मुझे पेश करेंगे, मेरे आका मेरे सामने लेकर आएंगे, अबू हुरैरा शिकम शेर हो जाएगा। मेरे आका अबू हुरैरा के करीब आते हैं, हाथ में दूध का प्याला देते हैं और देने के बाद कहते हैं, अबू हुरैरा ये जो 72 सहाबी की कतारें मौजूद है इन्हें दूध पिलाओ। अबू हुरैरा के दिल ने फिर ने कहा कि अबू हुरैरा ये 72
बहादुर सहाबी है और चंद कतरे दूध के हैं, इसमें क्या कोई सहाबी शिकमशेर हो सकता है? मगर उसी दिल ने कहा ये नबी का दर है, नबी के दर से कोई खाली नहीं जाता है। अबू हुरैरा एक सहाबी के करीब पहुंचते हैं, दूध का प्याला पेश आपने किया, एक सहाबी पीते गए शिकमशेर हो गए, एक कतरा भी दूध का कम ना पड़ा। दूसरे सहाबी के पास जाते हैं, दूसरे सहाबी पीते हैं, दूध का एक कतरा कम ना पड़ा। अल मुख्तसर बता दूं, 1 से लेकर 72 सहाबी दूध पी चुके हैं, मगर एक कतरा कम ना पड़ा। नबी की बारगाह में अबू हुरैरा आते हैं, कहते या रसूल अल्लाह 72 सहाबी शिकमशेर हो चुके हैं, या रसूल अल्लाह दूध का एक कतरा भी कम ना पड़ा। मेरे आका ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। हज़रत अबू हुरैरा पीते गए, शिकमशेर हो गए। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो, शिकमशेर हो गए। तीसरी मर्तबा मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा की ज़बान ने बरजस्ता कहा या रसूल अल्लाह आपका अबू हुरैरा इतना पी चुका है कि अब दुनिया में कोई चीज पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि हश्र में आपके हाथों से आबे कौसर का जाम पीऊंगा। तभी तो बरेली के रजा इमाम अहमद रजा इसको वफा की मोहब्बत में आपने कलम उठा और यूं लिखा या रसूल अल्लाह उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए। और करीब आए, नबी की शान देखे, आका का मकाम देखे कि मेरे आका का मकाम कैसा है। आज कहते हैं ना हम बड़े खुश नसीब है। क्यों खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें नबियों के सरदार का उम्मती बनाया है, लाजवाब नबी का उम्मती बनाया है। क्यों नबी उम्मती लाजवाब है? सुनो मेरे आका का ये मामला था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था कि मेरे आका का चेहरा जो देखता था मेरे आका का दीवाना बन जाता था, आका का कलमा पढ़ने लगता था, आका के करीब आने लगता था। और जब अबू जहल को मेरे आका की ये शोहरत बर्दाश्त न हुई, पेट में जब दर्द होना शुरू हुआ तो उसने नबी की बुराई करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद लोगों को जादू दिखाया करते हैं, अपने करीब बुलाया करते हैं। जब वो शोहरत से परेशान हो गया ना तो अपने दोस्त हबीब यमनी को एक खत लिखता है। हबीब यमनी कौन है? यमन का बादशाह है। अपने दोस्त को खत लिखता है कि जितना जल्द हो सके अपने तख्ते शाही कुर्सी को छोड़कर आप मक्का तशरीफ ले आए। और सुनो मेरे आका की शान को जानो, आका की असमत को जानो। हबीब यमनी के पास अबू जहल ने खत भेज दिया है, जितना जल्द हो सके मुल्क यमन को छोड़कर आप मक्का तशरीफ ले आए। रात में मुल्क यमन का सफर तय करके हबीब यमनी सफर को तय करता है और तय करने के बाद मक्का की तरफ कूच कर जाता है। और जब मक्का की सुबह की फजर की आजान के करीब पहुंचता है, पहुंचने के बाद अबू जहल के घर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद सलाम और मुसाफा मुआनका हुआ, उसके बाद नाश्ता हुआ। होने के बाद कहा जरा ये तो बता कौन सी इतनी जरूरी बात थी कि खत में आपने कोई बात का तशरीह भी ना किया, इसका कोई खुलासा भी ना किया। आपने यूं लिखा जितना जल्द हो सके अपने तख्ते शाही की कुर्सी को छोड़कर आप मक्का तशरीफ ले आए। मैं मक्का आ चुका हूँ, जरा ये तो बता मामला क्या है। अब अबू जहल ने कहा सुन मेरा एक भतीजा है, उस भतीजे के अंदर एक बीमारी है कि जो मेरे मोहम्मद को देखता है उसका बन जाता है, जो मेरे मोहम्मद की खुशबू को सूंघता है उसका दीवाना बन जाता है, जो मोहम्मद के पास जाता है उसका कलमा पढ़ के उसके करीब हो जाता है। अब उसने कहा मुझे भी तू मोहम्मद के पास लेकर चल। उसने कहा अगर तू मोहम्मद के पास जाएगा तू भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लेगा, मोहम्मद का दीवाना बन जाएगा। अब वो परेशान हो गया। कुछ देर के बाद कहा अगर ऐसी बात है ना तो तू मोहम्मद को बुला ले और मोहम्मद को मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा बेहतर भतीजा मोहम्मद कैसा है। मैं उसके नफ्स को पकड़ कर देखूंगा कि उसकी बीमारी क्या है। अबू जहल ने कहा अगर तू उसके हाथ को पकड़ेगा ना तो मोहम्मद मुस्तफा का बन जाएगा, उसके हाथ में अपना हाथ दे देगा तो मोहम्मद मुस्तफा से जुड़ जाएगा, अब तेरी जिंदगी वहां से जुदा ना हो सकेगी। अब वो परेशान है। कहा बोला तो तुम तेरे मैं भतीजे को देखना चाहता हूँ, मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूँ कि तेरा मोहम्मद अरबी कितना सच्चा है, तेरा भतीजा कैसा है, जिसके कमाल की तू इतनी तारीफ कर रहा है, जिसके हुस्न की तू इतनी तारीफ कर रहा है, जिसके कमालात की तू इतनी तारीफ कर रहा है। इतना कहने के बाद कहा सुन मैं अपने भतीजे मोहम्मद को जरूर कल बुलाऊंगा, मगर याद रखना जब मेरा भतीजा मोहम्मद आए ना तो अपने कुर्सी को मत छोड़ना, क्योंकि मोहम्मद जिस रात से गुजरते हैं ना लोग ताजीम के लिए अपनी कुर्सियां को भी छोड़ दिया करते हैं, लोग अपने तख्ते शाही को छोड़कर ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ प्लानिंग हो गई, मेरे आका की बारगाह में ये आवाज़ें सदा पहुंच गई है कि कल अबू जहल के दरवाजे पे आपकी बुलाहट है। अल्लाह के नबी की बारगाह में जब ये बात गई ना मेरे आका ने अपनी बारगाह में दुआ की मौला तो अबू जहल के दरवाजे की बुलाहट आई है, मौला वहां रुसवाई होगी, मौला शर्मिंदा किया जाएगा। तो रब ने जिब्राइल से पैगाम भेजा कि जा मेरे महबूब से कह देना जाना मेरे महबूब का काम होगा, इज्जत
बच्चे खुदा का काम होगा। आका जब तशरीफ लाए ना, कसम खुदा की मामला ही बदल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले फरिश्तों का झुरमट ही भेज दिया। मेरे आका जब अबू जहल के दरवाजे पे आते हैं, तमाम फरिश्ते ताज़ीम के लिए खड़े, यहाँ तक के हबीब यमनी की नजर जब मेरे आका के चेहरे मुबारक के पे पड़ती है, वो भी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। ये बदबख्त अबू जहल कुर्सी पे बैठा था, फरिश्तों ने कान पकड़कर उठा दिया कि उठ जा, अल्लाह का महबूब आया है, कायनात का दो जहां का मालिक मुख्तार आया है। अल्लाह का महबूब ही नहीं, पूरी कायनात का महबूब आया है। अबू जहल को फरिश्तों ने कान पकड़ के उठा दिया। जब मेरा नबी करीब आता है, अबू हबीब जबरी चेहरा देखता है और देखता ही रह जाता है, चेहरा देखता है, देखता ही रह जाता है। कुछ घंटों के बाद हबीब यमनी की जबान खुलती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, आपने डूबे हुए सूरज को वापस बुला दिया है। मेरे आका ने कहा, हाँ मैंने बुलाया है। इतना कहने के बाद हबीब यमनी कहता, या रसूल अल्लाह, मेरी भी एक दरखास्त है, मेरा भी एक अरीज़ा है आपकी बारगाह में। मेरे आका ने फरमाया, हबीब यमनी कहो तो क्या है। हबीब यमनी दरवाजे के करीब आता है, दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त में हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस वक्त सूरज के आप 2 टुकड़े करके दिखाए। मेरे आका ने कहा, सूरज छोड़ दो, मैं इस वक्त रात का पहर लाता हूँ और चांद के 2 टुकड़े करके दिखाता हूँ। हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो हबीब यमनी आपके हाथों में अपना हाथ रख के जाएगा और आपका कलमा पढ़ के जाएगा। इतना कहने के बाद मेरे आका मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ इशारा करते हैं। रात का पहर दोपहर में आता है और आने के बाद चांद नजर आ गया। मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े होने के बाद हबीब यमनी परेशान हो गया। मेरे आका ने कहा, छोड़ दो। कहा, या रसूल अल्लाह, अब इसे छोड़ दे और सूरज को वापस बुला दे। इतना कहने के बाद अबू जहल के करीब आता है और बरजस्ता कहता है, ओ अबू जहल, तू झूठा है, मेरा मोहम्मद सच्चा है। हबीबी यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दिल में ख्याल करके अपने यमन से चला था कि वो मोहम्मद अगर सच्चा होगा तो मैं अपनी बात उनकी बारगाह में रख के आऊंगा, अपने सवाल को उनकी बारगाह में रखूंगा, अपने जो तमन्नाएं दिलों में लेकर जा रहा हूँ नबी की बारगाह में पेश करूंगा। नबी की बारगाह में हबीब यमनी कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल में एक बात लेकर आया हूँ। मेरे आका ने कहा, मैं तेरे दिल की बात सुन चुका हूँ और अल्लाह ने कबूल कर लिया है। आज लोग कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है, तो मेरे आका ने हबीब यमनी से सुना नहीं और यूं कह दिया, हबीब यमनी मैंने सुन भी लिया, मेरा रब कबूल भी कर लिया। अब ये हबीब यमनी मक्का से सफर वापस करता है, यमन पहुंचता है और यमन में जब वो चला ना तो अपनी एक बेटी को छोड़ कर आया था जो पांव से अपाहिज थी, हाथ से लूली थी, जबान से बोल नहीं सकती थी, आजाद कोई काम नहीं, कान से बहरी थी। मगर जब हबीब यमनी अपने घर पहुंचता है, दरवाजे की कुंडी को हिलाता है, अंदर से आवाज आती, कौन? बाहर से जो आवाज गया, हबीब यमनी घर का मालिक आया है। बेटी ने कहा, बाबा ठहर जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खुला ना, जब बेटी की आजा को बेहतर देखा, परेशान हो गया, जमीन पे गिर गया। बेटी ने पानी के छींटे मारे, हबीब यमनी होश में आया। घर में बेटी कहती, बाबा ठहर कर बैठ जाओ। बाबा बैठता है, बेटी पानी दौड़ कर लाती है और कहती, बाबा पियो। बाबा पीता है और पीने के बाद कहता, बेटी जरा ये तो बता, तू तो पांव से चल नहीं सकती थी, हाथ से कोई काम नहीं कर सकती थी, जबान से बोल नहीं सकती थी, अपने कानों से सुन नहीं सकती थी, और मेरी बेटी जरा ये तो बता, ये मामला कैसे पेश हो गया कि तेरे आजा बेहतर हो गए, तू अपने जबान से बोलने लगी, अपने कदमों से चलने लगी, अपने हाथों से काम करने लगी। बेटी ने कहा, बाबा कल एक ऐसा दोपहर का वक्त था कि रात का मौसम आ गया, दोपहर के वक्त में मैं अपने बिस्तर पे सोने गई। जब बाबा मैं बिस्तर पे सो गई ना तो मेरे ख्वाब में एक नूरानी शक्ल वाले आते हैं और अपना हाथ मेरे सर पे डाल देते हैं। उनका हाथ डालना था कि अल्लाह ने मुझे बेहतर बना दिया, जिस्म के तमाम मराइज को दूर कर दिया। करने के बाद मैं बेहतर हो गई। इतना कहने के बाद बाबा ने कहा, बेटी मैं बड़ा खुश नसीब हूँ जिसने तुझे बेहतर किया है, मैं उस मोहम्मद के पास जाकर आया हूँ। तब बेटी ने कहा, बाबा सुन ले, तू बड़ा खुश नसीब नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ, तू मोहम्मद के पास चल कर गया था और
मोहम्मद मेरे पास चल कर आए थे। ये मेरे आका